My name is Kumar Vimal and I am from Government Engineering College, Vaisali. Through this lecture, we are going to examine bipolar junction transistor as an amplifier. Before proceeding to the lecture, I would like to draw your kind attention towards this microphone. This microphone converts my sound, which is pressure variation, into electrical variation, and that is signal. Previously, madam was saying that there is biosensor and it gives signal. That is also weak. The signals are weak in nature. The signal variation are weak in nature. Madam in her lecture said that it needs to be amplified. So this lecture is an investigation that whether bipolar junction transistor is a suitable component or not. So with this we will start this lecture. So we will examine, and during this examination following outcomes will be covered. That we will understand the operation of bipolar junction transistor, whether it is suitable or not. Then we will determine under which electrical condition it will operate as an amplifier. And then the third objective will be to calculate the gain, how much time it will amplify the weak signal. The three objectives, with these three objectives we are proceeding. So coming to the construction of the bipolar junction transistor, of important electronics component made of semiconductor, silicon, and it has three regions: emitter, N-type. N-type means majority is in electrons. Base, P-type. P-type means majority is holes. And then collector, also N-type. N-type means already said majority is electron. So in silicon we do suitable doping. Here we do pentavalent, so more electrons. Here we do trivalent, less electrons. So in this way, this is the construction. Now the current between the emitter and collector, that can be controlled through this base. इस बेस से मैं करंट को कंट्रोल कर सकता हूं, वैरी कर सकता हूं. अगर मैं इस सिग्नल को, so if I apply this signal to this, then this signal will control this current. So the effect of the signal is superimposed on the output. इनपुट का जो सिग्नल का जो इफेक्ट था वो आउटपुट पर आ गया. यही हम चाह रहे थे, जो मेरा स्मॉल वेरिएशन है वो लार्ज वेरिएशन में कन्वर्ट कर जाए. इस करंट को हम कंट्रोल करेंगे इस सिग्नल से. और मैडम आप कह रही थी एम्प्लीफिकेशन ऑफ द वीक सिग्नल, एंड वी विल एग्जामिन दैट दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू फुलफिल योर टास्क. So this is the symbol, electrical symbol, because when we use it in circuit, instead of using this, we will use the circuit symbol. So electrical people must know that for resistor we have symbols, for inductor we have symbols. Similarly, for transistor we have a symbol. This is the symbol of the transistor. Okay, fine. Now we are performing, we want to examine its terminal characteristic. हम लोग उसके टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक को जानना चाहते हैं. इसके लिए हम दो एक्सपेरिमेंट करेंगे और बच्चों से कहेंगे कि आप लैब में जाइए और दोनों एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कीजिए. मैंने एक बीजेटी को लिया है और ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बेस मेरा इनपुट करंट है एंड कलेक्टर इज द आउटपुट करंट. पहला एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं इसको कांस्टेंट रखें. इसके इनपुट टर्मिनल पर हम चेंज करते हैं तो क्या दिखेगा यह हम जानना चाहते हैं. हम टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक को मापना चाहते हैं. जब हम बेस को वेरी करेंगे, इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे. बेस को वेरी करेंगे कीपिंग आउटपुट कांस्टेंट. जो मुझे नॉर्मल डायोड की तरह, एक नॉर्मल डायोड की तरह आप लोग पढ़े होंगे, एक नॉर्मल डायोड, एक बैरियर पोटेंशियल के बाद मुझे करंट का राइज दिखता है. एक नॉर्मल डायोड की तरह ऑल द वोल्टेजेस आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू इमीटर, इसलिए मैं VBE लिख रहा हूं, वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू इमीटर. तो एक नॉर्मल डायोड की तरह करंट का बिहेवियर मुझे दिखेगा. अगर मैं सिग्नल चेंज करूं तो इस तरह से करंट वेरी करे. अब मुझे आउटपुट पर देखना है कि आउटपुट पर इसका क्या इफेक्ट जाएगा, कैसा इफेक्ट जाएगा. ये एक्सपेरिमेंट बच्चे लैब में जरूर करें, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है. अब मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट जो कर रहा हूं इसको कांस्टेंट कर दिया. प्रॉपर एमीटर वोल्टमीटर में लगाया हुआ हूं, सभी कुछ कैलिब्रेटेड तरीके से कर रहा हूं, सब कुछ सारा मेजरमेंट ले रहा हूं. इसको वेरी कर रहा हूं, आउटपुट को मैं वेरी कर रहा हूं. इन दिस टाइम वी आर वेरिंग दिस. इसको हम, ये मेरा वेरिएबल है, इसको मैंने क्या किया है, फिक्स कर दिया, कांस्टेंट करके छोड़ दिया. अब मैंने जो देखा जो बिहेवियर वो इस तरह का बिहेवियर है. मैं डिवाइस लेवल से इसको लिंक करना चाहता हूं. हो क्या रहा है, जैसे ही आप इस रिवर्स बायस को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हाई वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यहाँ लो वोल्टेज है, जैसे ही बढ़ा रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव अवे कर रहा है. और अगर पेंटावेलेंट एटम्स जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, फास्फोरस एटम्स एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो एटम कैसा रहेगा,
पॉजिटिव आयंस बन जाएगा। यहां पर आपको पॉजिटिव आयंस, फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर, इसी तरह से होल्स इज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां से होल्स को हटना, होल्स के हटने का मतलब है कि वैकेंसी को ऑक्युपाई कर दी, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम पर आ गया। कैसा चार्ज होगा वो? नेगेटिव। पहले वो न्यूट्रल था, जैसे जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ा रहे हैं यह डिप्लीशन रीजन बढ़ता जा रहा है। यहां से हम कांस्टेंट कर चुके हैं, नंबर ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इफेक्टिव बेस का जो विड्थ है वो डिक्रीज करता चला जा रहा है, वो जो डिप्लीशन रीजन है उसको पेनिट्रेट करता चला जा रहा है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन्स जैसे बिल्कुल जब करीब आ जाएगा, बिल्कुल जब ये करीब आ जाएगा डिप्लीशन रीजन, तो इफेक्टिव बेस विल बी नेग्लिजिबल, ऑल द इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी स्वेप्ट अवे बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और सारा का सारा 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, 100 इलेक्ट्रॉन चले गए, करंट मेरा क्या हो गया है? कांस्टेंट। अब एक दूसरा बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो कुछ वीबी, मैंने वीबी कांस्टेंट रखा था, मान लीजिए कि एक ने रखा था 1 वोल्ट, एक क्या कर दिया 1.2 वोल्ट रखा, आईबी ज्यादा मिलेगा, नेचर ग्राफ का सेम। अब क्या होगा? 200 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, 200 पहुंच जाएंगे, सेम नेचर में से दिखेगा, केवल करंट क्या होगा? एक बच्चा 10 माइक्रो एम्पियर पे किया है, एक बच्चा आईबी को 15 माइक्रो एम्पियर रखा है। अब यहां हम देखना चाहते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, दिस इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। कैसे मिला है? इसको रिवर्स बायस किए हैं और इसको फॉरवर्ड बायस किए। यहां क्या हो रहा है? ये जो आउटपुट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर वेरिएशन, दिस इज इंडिपेंडेंट है, इट वेरीज ओनली डिपेंड ऑन इनपुट। किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल इनपुट के वेरिएशन से वो चेंज हो रहा है। क्या किसी और के वेरिएशन से हो रहा है? नहीं। पहला क्राइटेरिया था एम्प्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि वो डिस्टॉर्शन लाता, मान लीजिए सिग्नल आया नहीं और शेप चेंज करा दिया, इट इज डिस्टॉर्शन। वो शेप का बिहेवियर नहीं है, वो सिग्नल का बिहेवियर नहीं है, बैंड का फॉल्स इंफॉर्मेशन आ जाएगा। सिग्नल आया नहीं और कुछ कोई और कारण से, कोई नॉइज से वो वेरी कर गया, दैट मे गिव फॉल्स डिटेक्शन। वो होना नहीं चाहिए, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल वेरिएशन। तो यह इंडिपेंडेंट है। और स्मॉल चेंज, देखिए माइक्रो एम्पियर का जब हम चेंज कर रहे हैं तो करंट में क्या है? मिली एम्पियर का चेंज आ रहा है। स्मॉल चेंज रिजल्ट्स इनटू अ लार्ज चेंज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फैक्टर एंड इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनपुट। This was the requirement. Our transistor is fulfilling all the criteria which was required to amplify the biosensor signal, which was discussed by one of the participants. It will amplify, it will fulfill your purpose. देख सकते हैं, केवल इस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल चेंज लार्ज चेंज। आप इसको लैब में करिएगा। अब कुछ पैरामीटर में डिफाइन करना चाहूंगा। एक पैरामीटर डिफाइन करने से पहले मैं अगर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दूं और इसका एनालिसिस करना, मैं मैथमेटिकल एनालिसिस करना चाहता हूं, मैं एक मैथमेटिकल एनालिसिस करना चाहता हूं। मैंने एक सिग्नल, पहले दो चीज की रिक्वायरमेंट हो गई। पहले तो इसको क्या करना होगा? डीसी वोल्टेज देकर इसको क्या करना होगा? एक्टिव रीजन में बायस करना होगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं? जो सिग्नल को एम्प्लीफाई करना है, इस सिग्नल को एम्प्लीफाई करना है, यहाँ पर लगा हुआ होगा बूस्टर, उसको मुझे क्या करना होगा? यहाँ देखिए सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या डीसी वोल्टेज मैंने लगाया। दो पार्ट में इसका हम एनालिसिस करेंगे, एक डीसी एनालिसिस और एक एसी एनालिसिस। तो डीसी एनालिसिस के लिए हम एसी को हटा देते हैं और सिंपल केवीएल यहाँ लगा देते हैं। प्री रिक्वेस्टिंग क्या है कि बच्चों को केवीएल इसमें आना चाहिए, क्या आप लोगों को किरचॉफ वोल्टेज लॉ वगैरह आना चाहिए। तो प्री रिक्वेस्टिंग है, यहां से केवीएल लगा देंगे, आईबी मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? आईसी निकाल लेंगे। आईसी जो होता है एक कांस्टेंट मैंने किया बीटा इनटू आई। बीटा क्या है? मैंने रेशियो ले लिया है। बीटा क्या है? यह रेशियो ले लिया, आईबी बाई आईसी का रेशियो। फैक्टर कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगा? ये आपका आईसी। सिंपल किस आप क्या करेंगे? केवीएल लगाकर केवल डीसी को एज्यूम कर हम लोग क्या करेंगे? पहला एनालिसिस करेंगे। फिर हम क्या आएंगे? स्मॉल सिग्नल को, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? सिग्नल को कितना एम्प्लीफाई करेगा? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ पैरामीटर डिफाइन करेंगे। क्या दूसरा चीज क्या है? फिजिकल, इसको एक मॉडल बनाना हम चाहते हैं। मॉडल क्या बनाना चाहते हैं? क्या हो रहा है? मॉडल इज जस्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल फिनोमेना। फिजिकल फिनोमेना को जब हम मैथमेटिकल पिक्चर देते हैं तो एक मॉडल कहलाता है। हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि आईबी पर डिपेंड कर रहा है आईओ, यानी कि आईसी, यानी कि वो डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो हम एक मॉडल बना रहे हैं। एक मेरा मॉडल क्या है? एक डिपेंडेंट करंट सोर्स जो किस पर डिपेंड कर रहा है? आईबी पर। किस रेट से डिपेंड कर रहा है? तो यहाँ कांस्टेंट निकालेंगे। ये जो कांस्टेंट निकालेंगे हम इसको बोल रहे हैं HFE। वो क्या है? चेंज इन आईसी विद चेंज इन आईबी। ये रेट ऑफ चेंज क्या है? इतना आईबी चेंज कर रहे हैं तो कितना आईसी चेंज कर रहा है? जब निकालते हैं ना एक किताब का दाम क्या है, जब 10 दिन बात करते हैं तो एक यूनिट चेंज करने पर कितना चेंज हो रहा है, इसको बोले HFE। और यह एक डिपेंडेंट करंट सोर्स में मॉडल, एक मैथमेटिकल पिक्चर में बना रहा हूं, एक मैथमेटिकल पिक्चर बना रहा हूं, दैट इज HFE। और इनपुट, इसको आउटपुट को ऐसे रिप्लेस कर दिया, एसी का एनालिसिस कर रहा हूं मैं। और सिग्नल इनपुट साइड पर क्या है? इसको, इस स्लोप को, स्मॉल सिग्नल चेंज के लिए स्लोप कांस्टेंट माना जा सकता है, स्मॉल चेंज के लिए लाइन मान सकते हैं। ऑल्दो इट इज नॉन लीनियर, मैडम कह रही थी इट शुड बी लीनियर, इट शुड बी लीनियर, अदरवाइज जो कांस्टेंट मैंने लिया है ना वो चेंज कर जाएगा।
जिस कांस्टेंट को रखकर, जिस सेंसिटिविटी पैरामीटर को मैंने कांस्टेंट मानकर चला है, वो मैडम कही थी इट शुड बी लीनियर, इट शुड बी लीनियर फॉर स्मॉल वेरिएशन इट कैन बी जो लीनियर। सो हम यहां से एक पैरामीटर निकाल रहे हैं HIE, चेंज इन VBE एंड चेंज इन IBE। इस तरह से इसको क्या किए, मॉडल कर दिए। इस मॉडल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसका गेन निकालते हैं। इस तरह से हमने इस ट्रांजिस्टर को समझा, दो एनालिसिस किया, DC एनालिसिस। इसी बच्चों से मैं कहूंगा कि आप इसका मॉडल का यूज करें, लैब में जाएं और एक वर्चुअल लैब में लाना चाहा हूं। वर्चुअल लैब IIT खड़गपुर ने डेवलप किया है। मैं चाहूंगा कि आप जाकर उसका सिमुलेशन में सामने दिखाना चाहता था, समय थोड़ा कम है, बट ये देखिए, ये वर्चुअल लैब बिल्कुल सिंपल। ये सारा एक्सपेरिमेंट कीजिए, देख सकते हैं HAP की क्या जरूरत है, मैंने कर लाया है। सिंपल सा है, आपके पास जाना है, मूव कराना है पॉइंटर, आपको सारा रीडिंग मिल जाएगा। और इस वर्चुअल लैब का यूज कर आप चाहे तो सारा पैरामीटर निकालिए। आपका साइकोमीटर जो स्किल्स है वो डेवलप करेगा। पैरामीटर निकालना है कि उसी पर मॉडलिंग करना है, सारा कैलकुलेशन जो है कितना रिस्पॉन्स आएगा सब उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये करने के बाद एक सिंपल यही असाइनमेंट है मेरा कि आप क्या कीजिए, इसको परफॉर्म कीजिए। IIT खड़गपुर ने डेवलप किया वर्चुअल, वहां जाकर प्लॉट कीजिए, सारा पैरामीटर निकालिए। अब जो यहां तक क्विज की बात है, तो किस रीजन में बायस करना चाहिए, एक्टिव रीजन। बच्चे बताएं कि जस्टिफाई कर सकते हैं, डिस्कशन क्वेश्चन, क्या हम जस्टिफाई कर सकते हैं इट विल एम्प्लीफाई द सिग्नल। एक पार्टिसिपेंट ने कहा था कि बायोसेंसर का सिग्नल भी क्या इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि एम्प्लीफाई करेगा, बिल्कुल करेगा, इट विल फुलफिल योर पर्पस। इन दिस वे वी कंप्लीट द क्लास, these were the references, Chandra's book, and I will one suggestion, read the book, it gives continuity of the thoughts को continuity देता है किताब पढ़ने से, इसलिए read these books and thank you.